Question number 10 of Vector's worksheet. It says prove the triangle ABX. Which triangle is this? This one is similar to COX. Since this is not a vectors question, I will just quickly jump through it. You're going to say this angle is equal to this angle. Why? Because they're alternate angles. This angle is equal to this angle. Once again, why is that? They're alternate angles. And to prove the two triangles are similar, you either use this test, or you use triple S test, or you use SAS test. 1, 2, 3. We're going to go with this. Make sure that since it's a 3-mark question, you mention the third angle as well. So once you're done proving these two are equal, once you're done proving these two are equal, you're also going to mention that this angle, the third one, is equal to this angle. अब तीनों एंगल्स प्रूव हो गए हैं तो अब 3 मार्क्स मिलेंगे. गिव अ रीज़न फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक. अब स्टेटमेंट का क्या मतलब है? I'll write down one example for you. For instance, if you write BAX, right, I'll highlight it कि ये कौन सा हम एंगल मेंशन करें, ये वाला. तो मेक श्योर कि आप एंगल का साइन या यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ. ठीक है, लेट्स गो विद दिस. एंगल BAX इज इक्वल टू, नाउ यू गोइंग टू मेंशन XCO. XCO. ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि दो एंगल्स इक्वल हैं. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? राइट द reason for that, and the reason for that is right next to it, which says is alternate angles. Now the statement that you had over here was BAX is equal to XCO. ये statement है और reason उसका आगे ये रहा. Similarly, you're going to repeat the process and write all of these angles again. I'll show you the answer in the mark scheme. Take a look over here. ये रहे. Once you write the statement, the reason next to it, the statement, the reason next to it, the statement, and the reason next to it. So 1 mark for each. Do not miss the third statement. Why? Because it's a 3-mark question. I'm going to jump to part B now. I won't write all of these together because once again it's a congruence similarity question that's usually done in grade 10. अब B part में this is where actual vectors start. 5 मिनट. This is where actual vectors start. OA is equals to 3A. OA कौन सी वैल्यू है? OA रही यहाँ से यहाँ तक. ये कितनी है? 3A. तो I'm going to write that down over here. Next, OC is equal to 6C. OC is the value from here till here. That's 6C. That is done as well. CB ratio BY is 1:2. यहाँ से लेके यहाँ तक CB है, यहाँ से लेके यहाँ तक BY है, और उसके 1:2 की डिवीजन है. That's all that they've given us so far, and they're asking us to find in terms of. अब ये क्या सिनेरियो है? ये A और B और ये C छोटे छोटे क्या लिखे हुए हैं. आपके वेक्टर के फॉर्मेट के 3 तरीके होते हैं. एक तो आप इस तरह वेक्टर ए बी की तरह लिखते हो, फिर एक स्मॉल लेटर बट बोल्ड इस तरह थिक होता है, या X/Y. ये 3 तरीके हैं वेक्टर्स को लिखने के. तो कह रहे हैं वेक्टर तो ए बी फाइंड करना है, बट इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल ए एंड बी, ये वाला या ये वाला. ठीक है, वी विल फाइंड दैट आउट. वेयर इज ए बी? ए बी इज दिस स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर. हाउ डू वी डू दैट? अब सिंस कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर जगह पे ही है. फर्स्ट वी प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब हमने क्या करना है? अब हमने यूज़ करना है कि अच्छा ये दो ट्राइंगल भी क्या सिमिलर हैं कि नहीं. ये भी सिमिलर है. वाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का, छोटे ट्राइंगल का, विच इज ट्राइंगल वाई ए बी, इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल ओवर हेयर वाई सी, सॉरी वाई बी ए इज इक्वल टू वाई सी ओ. तो ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है. वंस अगेन दो एंगल्स प्रूव हो जाएं एक ट्राइंगल के सिमिलर इक्वल टू अनदर एंगल्स, टू ट्राइंगल्स, वी डन विद प्रूविंग दैट दे आर सिमिलर. नाउ विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर? वाई ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल वाई ओ सी. जब ये सिमिलर हों, व्हाट डू वी डू? वी मेक देयर रेशियोज. फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द फर्स्ट टू, वाई ए ओवर वाई ओ, सेकेंड टू ओवर सेकेंड टू, ए बी ओवर ओ सी, द first and last y and b over the first and last y c. अब इसमें से आप बताओ कि कौन कौन सी साइड हैं जो हमें चाहिए. ए बी तो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, और ये जो नीचे इसकी ओ सी लिखी हुई है, लेट मी राइट दैट प्रॉपर्ली. क्या इसकी वैल्यू हमारे पास है? बिल्कुल है. तो ये काम की है. वाई और वाई ओ दोनों काम की नहीं है, बिकॉज हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं ही नहीं. और क्या वाई बी और वाई सी है? बिल्कुल. वाई बी की ये वैल्यू है, वाई सी की ये वैल्यू है, तो ये दोनों भी हमारे काम आ सकती हैं. we're gonna use these two. तो we're gonna write them down. इक्वेशन हमेशा एक इज इक्वल टू के साइन से बनती है, ठीक है, दो से नहीं. ये सब सिर्फ रेशियोज बताई थी आपस में कौन कौन सी इक्वल हैं. अब इनमें से दो का पेयर, एक पेयर चूज़ करेंगे. तो ए बी ओवर ओ सी एक है, और वाई बी ओवर
वाई सी ये दूसरी है। तो ये हमने चूज़ कर लिया। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओ सी की वैल्यू हमारे पास 6 ही है, वाई बी इज़ 2, वाई सी इज़ 3। अभी 3 कहाँ से है? अभी मैंने 2 लिखा था ना वाई से बी, तो अगर वाई से सी करना होगा यहाँ तक, तो ये 2 + 1 कितना बन जाएगा? 3। तो वी कैन यूज़ दैट। नाउ इफ यू वर टू सॉल्व दैट फर्दर, इसको यहाँ ले आते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बिकम, होल्ड ऑन, दिस इज़ गोइंग टू बिकम ए बी इज इक्वल्स टू 2/3 × 6c। ये क्या हुआ है कि मैंने 6c को वहाँ जाके बस मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ए बी को तो सब्जेक्ट बनाना है। सो ए बी कम्स आउट टू बी 12c/3 विच कम्स आउट टू बी 4c। तो ये हमारा आंसर है ए बी का, ये रहा 4c। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट सेज सी वाई बताएं। सी वाई क्या है? सी वाई हमारी वैल्यू है, आई highlight that for you as well. cy is starting from here going all the way up till here. अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी? हमेशा हमने वेक्टर को इसी तरीके से किया ना कि रूट बताया cy इज इक्वल टू co प्लस oy। क्या ये कह सकते हैं कि जी cy अगर आपने फाइंड करना है, ये नहीं है, ये रास्ता नहीं पता, तो आप क्या करो, आप c से o चले जाओ, o से y चले जाओ, वहीं पहुंच जाओगे। तो वही कर रहे हैं। co कितना है? अब ऑपोजिट ऑफ 6c है तो -6c। रिमेंबर 6c का साइन इस तरफ था। और अब ओ से y, अब फिर इशू ये है कि ए वाई हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप राइट पे नोट करो, ये जो लाइन है और ये लाइन ये पैरेलल है, मतलब जो हिस्से यहाँ पे बन रहे हैं वही हिस्से यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो इफ 1 रिप्रेजेंट्स 3a, तो 2 वुड बी रिप्रेजेंटिंग 6a। आई रिपीट दैट, दो पैरेलल लाइंस हैं, यूँ और यूँ। तो अगर ये जो लाइंस पैरेलल हैं, ये राइट पे किस तरह डिवाइड कर रही हैं शेप को? डिवाइडिंग द शेप इन द रेशियो ऑफ 1 to 2। अगर ये एक हिस्सा है तो ये दूसरा 2 हिस्से हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट दैट डाउन, एल्जेब्रिकली करके दिखाते हैं। सी बी रेशो बी वाई कितना है? 1:2। नाउ जो इतनी, बिकॉज पैरेलल लाइन से टेढ़ी तो नहीं जा रही ना, ये जो ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली लाइन अगर मैंने यूँ बनाई होती तो फिर तो हम नहीं कह सकते थे कि ये और ये सब बराबर है, बट सीधी जा रही हैं, ठीक है। तो अगर ये वन पार्ट है, वन पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 है, तो यहाँ पे हम 1 के नीचे क्या लिखते हैं? 3 है। सो 2 वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय x। वैसे तो नज़र आ रहा है कि 6 से आंसर आएगा, लेकिन ये कर लेते हैं मल्टीप्लाई, x × 1 इज़ x एंड 3a × 2 इज़ 6a। तो भाई ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 6a। तो वर्ड कन्फ्यूजन, इसको साइड पे लिख लेता हूँ। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक OA 3 है, AY 6A है। कैसे अभी फाइंड किया ये देखो। तो ये OY कंप्लीट कितना है? 3A + 6A विच इज़ हाउ मच? 9A। तो वी कैन राइट दैट, rearrange that and write it as 9A - 6A. Examiner doesn't usually prefer answer starting with a negative sign. I'll repeat once again कि 9A - 6A किस तरह आया है। पहले क्विकली चेक कर लें आंसर सही है। हाँ, आंसर हमारा ठीक है। I'll erase majority of the data over here so that easily आप व्यू कर पाओ और आपको नज़र आएगा ये सिंपल है। ये 1:2 है, ये क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन था, ठीक है। हमारा सवाल यहाँ पे क्या था कि हमने निकालना था C से Y, ये वैल्यू निकालनी। हमारे पास ये नहीं था रास्ता, तो हमने कहा C से जाएंगे O और O से जाएंगे Y, डन। अब C से O गए, वो तो इजी था क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन के स्टार्ट में ही मेंशन था, ये रहा OC 6C है। ये इस डायरेक्शन में 6C था, इस डायरेक्शन में हम ऑपोजिट गए तो हमने कहा -6C है, इसलिए यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे पहुँच गए बिकॉज हम C से O गए ना। अब हमने O से Y जाना है। अब O से A तो रास्ता हमें पता है यहाँ तक, दैट इज़ 3A। अब A से Y नहीं पता था, वो कैसे फिगर आउट किया? हमने कहा क्योंकि ये राइट साइड पे 1:2 में डिवाइड हुआ, C भी 1 है तो ये भी 1 ही पार्ट है, 1 पार्ट है, 1 कोई वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट कर, रेशो। जिस तरह आप दो बच्चे हों X और Y एंड यू डिवाइड द कैंडीज अमंग्स देम इन द रेशो ऑफ 3:6। अब सिंप्लीफाई करो तो 1:2 है ना। अब कैंडीज तो आपने असल में 3 दी थी और इसको 6 दी थी लड़के को, बट उनको सिंप्लीफाई किया तो 1:2 आया। इसी तरह भाई ये सिंप्लीफाई करके 1:2 आ रहा है। असल वैल्यू क्या है? 3A। अगर इसकी 1 की 3A है तो 2 की कितनी होगी? 6A। इसलिए ये 9
वह यहाँ से यहाँ जाते हुए -60 हुआ और यहाँ से यहाँ जाते हुए 9A हो गया। तो ये तो दो पार्ट हो गए। अब ये जो पार्ट है दिस हार्डली टेक 2 और 3 मिनट्स। लेट्स क्विकली डू दिस। द क्वेश्चन सेज फाइंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द रेशो OX रेशो XB। OX और XB कहाँ है? लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस और इसकी भी ओरिजिनल वैल्यू लिख लेते हैं। ये OA जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक था और ये जो था 6C था। अब OX रेशो XB ये वाली वैल्यू रेशो दिस वैल्यू ये हमने फाइंड करना है। दैट्स रियली इजी। हाउ? बिकॉज मुझे ये बताओ कि हमने पहले OX की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमने किसकी फाइंड करनी है? XB की। अब OX इज रिप्रेजेंटिंग दिस बिगर ट्राइंगल। तो आप इस बिगर ट्राइंगल की कोई भी एक साइड मेंशन कर दो विच हैज़ नथिंग टू डू विद OX। वाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमने ये प्रूव कर लिया था ना पिछले पार्ट्स में कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो इनकी आपस की लेंथ की रेशो भी बराबर होगी। तो OX की जगह आप लिख लो 6C, क्योंकि अब वंस अगेन आई रिपीट OX भी इसी ट्राइंगल का पार्ट है और OC भी इसी ट्राइंगल का पार्ट है, तो हमने OC की वैल्यू उठा के ली थी। और XB इज़ दिस। अब XB की हमारे पास आंसर तो नहीं है, XB की वैल्यू तो नहीं है। इसी तरह कोई उसकी मैचिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम उसके साथ मेंशन कर देंगे। और ये देखो हमारे पास ये 4C था, ये रहा 4C, ठीक है। XB belongs to this triangle, let me highlight this, hold on। XB belongs to this triangle और इसी ट्राइंगल की साइड थी ये 4C भी, ये देखो इसी ट्राइंगल की साइड थी ना ये 4C भी। तो अब आप क्या करोगे कि आप कहोगे जी ठीक है हमारे पास एग्जैक्टली वो साइड्स नहीं है बट उनकी मैचिंग साइड्स हैं। OX निकालने के लिए OX की जगह हमने उसकी मैचिंग साइड OC डाल दी। भी मैचिंग किस तरह है? उसी ट्राइंगल के अंदर है। और XB की ये वाली लेंथ है, ये लेंथ तो नहीं है हमारे पास बट क्या इसी ट्राइंगल की एक और लेंथ है? हाँ बिल्कुल है, AB है विच इज़ 4C। इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस यू गेट 3:2। अब क्वेश्चन में पहले क्या OX लिखा हुआ है? बिल्कुल OX लिखा हुआ है, फिर XB लिखा हुआ है, फिर XB लिखा हुआ है। तो 3:2 शुड बी द आंसर एंड दैट्स एग्जैक्टली द आंसर दैट वी हैव। हार्डली अ मिनट मोर टू गो इन दिस क्वेश्चन देन वी गोना एंड दिस वीडियो। 3:2 हमारा आ गया, दैट्स द आंसर फॉर दिस। इफ़ you're struggling with the answer जो मैंने अभी 3:2 निकाला है, तो लेट मी गिव यू अनदर कॉन्सेप्ट। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारे पास कौन से ट्राइंगल्स है? ट्राइंगल COX, ये हमने ये प्रूव किया था। ट्राइंगल COX इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABX, ये प्रूव किया था ना। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी साइड जो OX है उसकी रेशो ओवर BX की रेशो, OX ओवर BX is going to be the same as the ratio of let me give you an example, CO या हाँ CO ओवर AB, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया, CO की वैल्यू यहाँ डाली, AB की वैल्यू जो हमारे प्रीवियस पार्ट से आई हुई थी यहाँ डाली और उस तरह इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। दैट्स 3/2। द सेकंड से एरिया ऑफ ट्राइंगल COX ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX। अब COX की OX लेंथ यहाँ से आई है, ABX की XB लेंथ यहाँ से आई है। और एरिया किस तरह निकालते हैं? एरिया 1 ओवर एरिया 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का स्क्वायर। अब ये लेंथ 1 की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो यहाँ 3 डाल देते हैं, लेंथ 2 की वैल्यू 2 रही और 3 और 2 का स्क्वायर लें तो क्या आता है? 9:4। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड सॉलिड्स के अंदर जो लास्ट सब टॉपिक मैंने अपनी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड लास्ट which is hardly going to take 30 more seconds, area of triangle AYB over area of triangle OABC। अब AYB कौन सा है? AYB रहा ये देखो AYB ये है, इसका एरिया ओवर OABC का एरिया, OABC किधर है? ये वाला। अब कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एरिया जब भी कंपेयर करते हैं दो सिमिलर शेप्स का करते हैं। ये तो एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्रेपेजियम है, इनका हम एरिया इस तरह डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो व्हाट वी गोइंग टू डू इज़, ठीक है गुड लुक, हम इसका एरिया छोटे ट्राइंगल का इस बड़े ट्राइंगल के एरिया से ही कंपेयर करेंगे और फिर आपस में इनको माइनस कर देंगे। बिकॉज अगर मैं ये बड़े ट्राइंगल में से ये ग्रीन पार्ट माइनस कर दूँ तो मैं इसी एरिया के साथ रह जाऊँगा। लेट मी हाईलाइट इट एंड शो इट टू यू। फॉर इंस्टेंस हाँ,
मैं इस बड़े ट्राइंगल में से जो मैं पूरा हाईलाइट करने जा रहा हूँ गौर से देखना. If I subtract the area of triangle AYBU, I'll be left with the area of the shaded region which is a trapezium OABC. अब बताओ कि हमारे पास इनकी में से कोई वैल्यू थी. हमारे पास ये 4C थी और नीचे वाली 6C है. तो ट्राइंगल YAB एंड ट्राइंगल YOC दे आर सिमिलर. तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल YAB ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल YOC इज इक्वल्स टू लेंथ 1 विच इज़ AB लिख लेते हैं, ओवर लेंथ 2 विच इज़ OC का स्क्वायर. ठीक है. अब AB की लेंथ कितनी थी, ये रही, यहाँ डाल दो 4C का स्क्वायर. OC की लेंथ कितनी थी 6C. इनका स्क्वायर ले लें. पहले C's को कैंसिल कर लें. वी लेफ्ट विद 4 का स्क्वायर इज़ 16 और 6 का स्क्वायर इज़ 36. अब इसका मतलब क्या है कि ये बड़े ट्राइंगल का एरिया 36 है. पूरे बड़े ट्राइंगल का कौन सा, ये पार्ट इंक्लूडेड एंड नीचे वाला जो सारा ग्रीन में शेडेड है. और जो छोटा ट्राइंगल है ये जो मैं इरेज करने जा रहा हूँ ये वाला, इसका एरिया है 16. ठीक है. तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना रह जाएगा. तो यू गोइंग टू से 36 बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ दिस एंटायर ट्राइंगल. मैं ऑरेंज में हाईलाइट कर देता हूँ. 36 इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ दिस एंटायर ट्राइंगल माइनस 16 विच इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल YAB. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल बी लेफ्ट विद द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम विच इज़ हाउ मच. ये देखो 36 माइनस 16 विच कम्स आउट टू बी 20. तो मैं अब छोटा करके लिख देता हूँ. ये 16 है, ये 20 है और इन दोनों को ऐड करो 16 और 20 करो 36 बन रहा है. तो अब गौर से देखना, उन्होंने पहले किसका कहा हुआ है एरिया मेंशन करना है AYB का. AYB का भी हमने कहा था 16 है. कैसे पता है, ये लिखा हुआ है. और ये ट्रेपीजियम का कितना है ये हमने उसके अंदर लिखा हुआ है 20. इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस विद 4/5 हमारा आंसर आता है. एंड लेट्स चेक दैट मैचेस द आंसर इन द मार्क स्कीम एज वेल. Right, so that gives us that marks the end of question number 11. Sorry, question number 10.